Hello everyone, welcome to iQuanta. I'm Yogesh and today I'm starting the number system playlist for IPMAT. So number system initial topic hota hai whenever you study quantitative aptitude. The first chapter that you go through is number system and it's very important for IPMAT, not just for IPMAT. If you attempt any other management entrance exam after 12 like IPMAT, Indore, Rohtak, JIPMAT, Symbiosis, NPAT, any other exam, in fact in future if you attempt MBA exams like CAT, ZAT, then also numbers is very important and numbers creates a foundation for all the other topics like algebra, arithmetic, geometry. You cannot imagine mathematics without numbers. So numbers is going to be very important. So this is a complete playlist and in this playlist I am going to cover all the subtopics of numbers, basic to advanced, and we will not just be covering the concepts, we will also be solving a lot of problems. Probably if you go through this entire playlist, then you will not even need to go through any book. Okay, शायद आप बुक्स को छोड़ करके ये देख लेते हो तो शायद आप नंबर सिस्टम को जल्दी कवर अप कर सकते हो बिकॉज बुक्स समटाइम्स आर नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. ओके, कहीं कहीं पे आपको उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है. ओके, सो इन दिस प्लेलिस्ट विल बी कवरिंग द टाइप्स ऑफ नंबर्स फर्स्ट, द एंटायर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, व्हाट ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स डू वी हैव विद एग्जांपल्स. ओके, देन विल बी कमिंग टू डिविजिबिलिटी रूल्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल डिविजिबिलिटी का एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है आईपीमैट के अंदर. सो विल बी लर्निंग नॉट जस्ट द बेसिक डिविजिबिलिटी रूल्स बट विल ऑल्सो ट्राई टू डिवाइज divisibility rules for a given number. Advanced divisibility rules भी हम कुछ special numbers के पढ़ेंगे. Then we'll be doing everything around factors. अगर आपने IPMAT 2024 का पेपर देखा है या उससे पहले का पेपर, हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन फैक्टर्स रिलेटेड आ जाता है कि एक नंबर है उसके कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो मल्टीपल ऑफ 3 हैं, समथिंग लाइक दैट. ओके, देन यूनिट डिजिट्स जिसमें साइक्लिसिटी का कंसेप्ट हम पढ़ेंगे. अगेन यूनिट डिजिट्स के क्वेश्चन भी आपने IPMAT के प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखे होंगे. ओके, नाउ लास्ट 2 डिजिट्स का क्वेश्चन अभी तक IPMAT पे नहीं आया है बट सिंस IPMAT का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा एज मोर पीपल आर कमिंग इनटू इट, सो प्रोबेबली नेक्स्ट थिंग दे माइट गेट इनटू व्हेन वी टॉक अबाउट डिजिट्स इज लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स. तो वो कैसे निकालते हैं वो भी हम सीखेंगे. Then we'll be going to remainders. In IPMAT 2025 itself, Indore 2 questions were there from remainders and they are very very common. Okay, so we'll be learning all the remainder theorems like Chinese remainder theorem, Wilson remainder theorem, Euler remainder theorem. We'll be learning negative remainders as well. Okay, coming to factorials, again it's very very common and here they generally ask you the index of greatest power, trailing zeros. Okay, so we'll be learning that कि किसी number की किसी factorial के अंदर क्या power होती है. Okay, so factorials is very important. Then we'll come to HCF LCM, not just the basics but the difficult questions as well. Then HCF LCM of fractions वो भी हम देखेंगे. ठीक है, then we come to base system. Even though base system is not so common in IPMAT but we'll do its basics जहाँ तक आपको आना चाहिए because बहुत ज़्यादा डेप्थ में जनरली IPMAT में base system नहीं देखा गया है. ओके, एंड देन we'll be coming to the miscellaneous problems around numbers. ओके, जिसमें सारे मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हम करेंगे. आई होप दैट इज क्लियर. नाउ लेट्स गो टू द very first slide which is on classification of numbers. Okay, so when you talk about numbers, numbers are basically classified into 2 categories first. Okay, first is real numbers and second is non-real or imaginary numbers. So all numbers are real numbers. Okay, चाहे वो आपका integer हो, चाहे वो आपका with decimal हो, without decimal हो, fraction हो, zero हो, positive हो, non-positive हो, even, odd, everything falls inside real numbers. Every number is a real number. Okay, but except which one? Non-real या फिर imaginary. So imaginary numbers से related वैसे बहुत ज़्यादा concepts नहीं आते IPMAT के अंदर. मैं इसको just touch up करूँगा to separate it from real numbers. Okay, so every number is a real number and you know that a number line is full of real numbers. आप हर एक real number को number line पे represent कर सकते हो. You know what is number line, right? It's a visual representation of numbers. बीच में zero होता है. On the right side we have positive numbers, left side we have negative numbers, right? सो रियल नंबर्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स आते हैं. एंड देन नॉन रियल और इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं. सो कई बार मैथमेटिक्स में एक सिचुएशन आ जाती है. सपोज वी कम अक्रॉस सच अ सिचुएशन दैट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अगर ऐसा आ गया तो ऑब्वियसली x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू -1. बट वेन एवर वी सॉल्व क्वेश्चंस इन मैथमेटिक्स एंड वी कम अक्रॉस अ स्क्वायर, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर चाहे पॉजिटिव नंबर हो नेगेटिव नंबर हो, उसका जो स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है. तो ये कैसी सिचुएशन है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1. दिस इज अ वेरी स्पेशल सिचुएशन. ओके, एंड इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, x विल बी रूट ऑफ -1 एंड रूट ऑफ -1 इज कॉल्ड आयोटा. आई, इट इज डिनोटेड बाय आई, कॉल्ड आयोटा एंड इट रिप्रेजेंट्स इमेजिनरी नंबर. यानी कि एक ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे आपको नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा. ओके, सो दिस इज हाउ यू एनकाउंटर नॉन रियल और इमेजिनरी नंबर्स.
नॉन रियल और इमेजिनरी नंबर्स को आप नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते. ओके, तो सबसे पहली चीज़, यू कैन नॉट रिप्रेजेंट देम ऑन अ नंबर line. Okay, but all real numbers you can represent on a number line. Now let's get further. Real numbers भी दो टाइप के होते हैं. First is irrational, second is rational. So what are rational numbers? All of you must have read a very common definition that we come across in books. A number that can be represented in form of p by q, where q is not equal to 0, is called a rational number, isn't it? So all rational numbers can be represented in form of p by q, where q should not be equal to 0, because किसी भी फ्रैक्शन का p by q एक फ्रैक्शन है, अगर उसका डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वो नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा. ओके, सो रेशनल फर्दर आर क्लासिफाइड इनटू इंटीजर्स. व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी, बट विदाउट एनी डेसिमल पार्ट, दे आर कॉल्ड इंटीजर्स. व्हाट आर डेसिमल्स? डेसिमल्स आपको पता है, ऐसे नंबर जिनमें पॉइंट लगाओ. अब पॉइंट लगे हुए दो तीन टाइप के नंबर्स होते हैं. एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, यानी कि जैसे आपने किया, जैसे आपने एक नंबर लिखा से 5.2, तो 5.2 क्या एक डेसिमल नंबर है, बट इट इज टर्मिनेटिंग बिकॉज 0.2 आकर के वो नंबर खत्म हो गया है, उसके आगे को पॉइंट में डिजिट्स नहीं है. बट देर आर सम डेसिमल्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग. जैसे कि अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करते हो से 4/3 की, तो 4/3 इज व्हाट 1.3333333333 एंड सो ऑन. यस और नो? सिमिलरली से 1/6 भी एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, राइट? तो उसकी जो डेसिमल डिजिट्स है वो आते रहती है, दैट इज वाई वी कॉल इट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. देन वी कम टू in non-terminating we have repeating decimals as well. Okay, अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, आपका नंबर जो है उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में यू डोंट सी एनी टर्मिनेशन ऑफ डेसिमल्स, यानी कि खत्म नहीं हो रहे डेसिमल्स, आने में लगे हैं डिजिट्स इन डेसिमल्स, राइट? इसके अंदर रिपीटिंग, व्हाट डू यू सी? 1.33333 में आपको क्या दिख रहा है? ये एक डेसिमल नंबर है एंड रिपीटिंग भी है, बिकॉज डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, वहाँ पर एक पैटर्न है रिपीटेशन का. ना ऐसा नहीं कि बस सिंगल डिजिट रिपीट करती है, कई बार डबल डिजिट भी रिपीट करती है. सपोज आई राइट अ नंबर 2.787878787878 so on. So here we see that two digits are repeating, right? 78 after decimal they are repeating. I mean a pair of digits is repeating, दो digits repeat हो रही हैं. तो ये होते हैं repeating decimals आपके. ओके, तो हम क्या कह सकते हैं, जितने भी आपके डेसिमल्स होते हैं, जितने भी इंटीजर्स होते हैं, जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं, ऑल द फ्रैक्शंस एज वेल, दे आर ऑल रेशनल नंबर्स. बट व्हेन वी स्पेसिफिकली कम टू डेसिमल्स, डेसिमल्स होते हैं दो टाइप के, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग तो ऑब्वियसली रेशनल होते ही होते हैं, बिकॉज 5.2 को आप 52/10 लिख सकते हैं, विच इज इन फॉर्म ऑफ p by q. लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो रिपीटिंग होता है, वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है. ठीक है, जैसे कि 4/3 1.333 नॉट टर्मिनेटिंग, 2.78787878 so on नॉन टर्मिनेटिंग. अब ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, जैसे 1.333 नॉन टर्मिनेटिंग भी है, और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है 2.787878 एज वेल एज इट इज रिपीटिंग क्यों बोलते हैं ना, बिकॉज डेसिमल के बाद इनकी डिजिट्स रिपीट कर रही हैं. तो वो सारे डेसिमल्स जो नॉन टर्मिनेटिंग है बट उनका डेसिमल पार्ट रिपीट हो रहा है, दे आर ऑल्सो रेशनल. तो कभी भी आपको कोई ऐसा डेसिमल नंबर दिखे जिसमें आपको नॉन टर्मिनेशन भी दिख रहा है, यानी कि नंबर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और उसके डिजिट्स रिपीट भी हो रही हैं डेसिमल के बाद, तो वो डेफिनेटली एक रेशनल नंबर हो जाएगा. आई होप दिस क्लासिफिकेशन इज क्लियर टू यू. बट अगर हम रियल नंबर्स में दूसरे टाइप के नंबर्स में जाएं, विच आर कॉल्ड इररेशनल नंबर्स, तो इररेशनल नंबर स्पेसिफिकली वो नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी होते हैं. जैसे कि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पाई. स्कूल में हम पढ़ते हैं पाई इज 22/7, बट पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है. जनरली वो स्कूल में हमें पाई को 22/7 सर्कल की एरिया कैलकुलेट करते वक्त इसलिए देते हैं बिकॉज इट इज़ ईजियर टू यूज़, कैलकुलेशन में बहुत ईजी रहता है. एक्चुअली द वैल्यू ऑफ पाई, अगर आप पाई की वैल्यू कभी गूगल कर लेना, सो आपको दिखेगी 3.142857643 आई मीन द डिजिट्स दैट कम इन द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाई. तो 3.14 के बाद आपको जो डिजिट्स दिखेंगी, आप कभी भी वहाँ पे रिपीटेशन नहीं देख पाओगे. ओके, तो जो एक्चुअली 22/7 होता है, 22/7 वो पाई की एक्चुअल वैल्यू वो नहीं होती है. ये चीज़ आपको पहले याद रख लेनी है. एंड 22/7 रेशनल है बिकॉज 22/7 हैज बीन रिटन इन फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0, so it is rational. बट अगर आप एग्जैक्ट पाई की वैल्यू देखते हो, इट इज इररेशनल. ओके, तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाई विल ऑलवेज बी अ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग टाइप ऑफ डेसिमल नंबर.
आई होप दैट इज क्लियर। अब अगर हम इंटीजर्स के अंदर जाते हैं तो इंटीजर्स बहुत कॉमन है, राइट। इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो बट विदाउट डेसिमल, जैसे -1, -3, 0, 7, 8, 10 वट एवर। ओके, इंटीजर्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं होल नंबर्स एंड सेकेंड नेगेटिव। होल नंबर्स के अंदर देखो आपके क्या क्या आते हैं? जीरो, ऑब्वियसली जीरो इज अ होल नंबर, सबने पढ़ा होगा, एंड बाकी नेचुरल भी। तो नेचुरल नंबर्स और जीरो को अगर आप क्लब कर देते हो एक साथ, दे आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? जीरो से। 0, 1, 2, 3 सो ऑन, दे डोंट हैव एनी डेसिमल पार्ट। नेगेटिव, यू नो, नेगेटिव जीरो से छोटे वाले नंबर्स, ऑल नंबर्स लेस देन जीरो आर कॉल्ड नेगेटिव। ओके, तो इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स आए, बट मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद क्या है आपका? आई मीन दिस इज ऑल अबाउट नंबर्स। अगर आप इनको फर्दर क्लासीफाई करते हो तो और क्लासीफाई होते हैं, जैसे आपने और टाइप के नंबर्स पढ़े होंगे, इवन, ऑड, प्राइम, कॉम्पोजिट, इजंट इट? उतना ज़्यादा क्लासिफिकेशन में हमको जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस नंबर्स को देख करके उनका टाइप आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। सपोज मुझसे अगर कोई पूछ लेता है 1.77777, तो ये क्या हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर, तो ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। और रेशनल नंबर होगा तो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। अगर मेरे से कोई पूछे कि जो 5 नंबर है वो क्या क्या होगा, तो 5 एक इंटीजर भी है, 5 एक होल नंबर भी है, 5 एक नेचुरल नंबर भी है, राइट। सो नेचुरल नंबर्स आपको पता है जो काउंटिंग नंबर्स हमारे होते हैं 1, 2, 3, 4 जो हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं विदाउट एनी डेसिमल, राइट। सो 5 एक नेचुरल नंबर भी है, 5 एक ऑड नंबर भी है। तो एक नंबर जो होता है वो मल्टीपल टाइप्स का हो सकता है। बस आपको ये क्लियरली आना चाहिए कि उस पर्टिकुलर नंबर को आप किस किस टाइप का बोल सकते हो, वो किस किस टाइप का नंबर है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कीप कमेंटिंग, आई डेफिनेटली आंसर। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So if I go to the definition, okay, because as I said कि ये basic से हम शुरू कर रहे हैं, if I talk about integers, all positive numbers, all negative numbers and zero without any decimal are integers, okay. A number line is full of integers, obviously एक number line में बहुत सारे integers होते हैं, बीच में zero, right hand side में, right, in middle you have zero, on the right hand side you have positive integers, left hand side you have negative integers, okay, left negative integers while on the right you have positive integers and zero in between. The set of integers is usually represented by alphabet Z. तो कई बार आपके क्वेश्चंस में ऐसा लिखा रहेगा कि Z is a set of integers, तो इसका मतलब उस सेट का नाम है Z और उसके अंदर आपके सारे इंटीजर्स आ रहे हैं। तो जीरो पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स आपके विदाउट एनी डेसिमल आर कॉल्ड इंटीजर्स। बहुत ईजी चीज़ है। नेचुरल नंबर्स सारे काउंटिंग नंबर्स, दे स्टार्ट फ्रॉम 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टिल इन्फिनिटी। आपके सारे वो नंबर्स जिनमें डेसिमल नहीं है आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। All numbers from 1 onwards are natural numbers. They don't have any decimal part. The set of natural numbers is usually represented by the symbol n. तो n is the name of the set and इसके अंदर कौन कौन से आपके एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3 and so on आप आगे को जाते हो तो all real numbers can be represented on a number line. This is also written, right? All real numbers can be represented on a number line. ये याद रखना। तो चाहे वो irrational नंबर हो, रेशनल नंबर हो, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, जीरो, वॉट एवर, वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कौन सा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है? दैट इज नॉन रियल नंबर और इमेजिनरी। ओके, नाउ अ लॉट ऑफ टाइम्स यू मस्ट हैव कम अक्रॉस अनदर टर्म कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हो तो मैं बस छोटा सा आपको बता दे रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स का उतना यूज नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। यानी कि जैसे मैं एक नंबर लिख लेता हूँ से 3 + 2 आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसमें रियल पार्ट भी होता है, इमेजिनरी पार्ट भी होता है। सो a प्लस आयोटा बी में आपका जो 3 है दैट इज रियल नंबर, 2 आयोटा आई जिसके साथ लग गया वो इमेजिनरी पार्ट है। ओके, सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर मेड ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर्स एज वेल एज इमेजिनरी नंबर्स। अगर कोई आपसे प्योरली इमेजिनरी नंबर पूछे तो आप सिर्फ आयोटा लगाओगे, जैसे कि 6 आयोटा, 7 आयोटा, 8 आयोटा, 9 आयोटा, 10 आयोटा। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर सबको क्लियर है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी सबको क्लियर है। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट विच इज कॉल्ड होल नंबर्स। होल नंबर्स एज आई सेड they start from 0 and you keep going ahead, 0, 1, 2, 3, 4 so on. They don't have any decimal part. Whole numbers do not contain any decimal or fractional part. They are represented by the symbol W. ये रिप्रेजेंटेशन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कई बार क्वेश्चंस में लिखा होगा। ठीक है, तो जनरली मैथमेटिक्स में हम उसको इसी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपका क्वेश्चन जो सेट कर रहा है वो k लिख देगा, अगर k इज द सेट ऑफ होल नंबर्स, तो आप मान लो कि ठीक है k के अंदर सारे होल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज जनरली जो बच्चे 11-12 में मैथ्स पढ़ने जाते हैं
व्हेन दे रीड अ चैप्टर कॉल्ड सेट थ्योरी, तब उनको बताया जाता है कि जो सेट होते हैं उनके नाम क्या होते हैं, और जनरली जो नेचुरल नंबर्स का सेट होता है उसको n लिखते हैं, होल नंबर्स के सेट को w लिखते हैं, इंटीजर्स के सेट को z लिखते हैं. ओके, द कंप्लीट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स. ऑब्वियसली 0 1 2 3 4 so on. ओके, नेक्स्ट वी कम टू इवन नंबर्स. अब इवन नंबर्स फर्दर क्लासिफिकेशन आ गया आपका. मैंने इसको ट्री में नहीं लिखा था, आपके नंबर्स का जो ट्री था क्लासिफिकेशन ट्री उसमें नहीं लिखा था, बट नंबर्स, इवन नंबर्स अगर आप बात करते हो तो यू आर वेरी फेमिलियर विद देम. ऑल नंबर्स डिविजिबल बाई 2 आर इवन नंबर्स. यानी डिविजिबल का मतलब होता है अगर आप किसी नंबर को गिवन नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए. अगर मैं कहता हूँ 6 इज डिविजिबल बाई 2, इसका मतलब 6 को अगर 2 डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए. तो all those numbers which leave remainder on being divided by 2 are even numbers. Okay, अब they can be written in form of 2k where k is an integer. Okay, तो कई जगह पे एक डिबेट चलती है कि इवन नंबर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी. तो ऑब्वियसली अगर आप इवन नंबर्स को देखोगे तो इवन नंबर्स जनरली आपको कौन से पता होता है, 2 4 6 8 10 so on. बट अगर आप 2 से पीछे को आओ तो जीरो भी एक इवन नंबर की तरह कई बार ट्रीट होता है. बट क्वेश्चन में आपको क्लासीफाई करके दिया रहेगा कि हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं या x इज अ से पॉजिटिव इवन नंबर ऐसे करके लिखा रहेगा. ठीक है, उस केस में आप क्या कर सकते हो, नेगेटिव इवन पे भी जा सकते हो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो अलाउड है. ठीक है, अदरवाइज आप जनरली इवन नंबर्स 2 से काउंट करोगे, 2 4 6 8 so on. ओके, सिमिलरली वी कम टू ऑड नंबर्स. ऑल नंबर्स नॉट डिविजिबल बाई 2 आर ऑड नंबर्स. यानी कि वो नंबर्स जिनको अगर आप 2 से डिवाइड करते हो और रिमाइंडर 0 नहीं आता तो वो ऑड नंबर्स होंगे. दे कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ 2k प्लस माइनस 1. यानी कि ये ऑड नंबर्स 2k प्लस 1 फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं और 2k माइनस 1 फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं. ठीक है, सो अगर आप k को 1 डाल दोगे यहाँ पर तो 2 इंटू 1 माइनस 1 विल बी 1, और अगर आपको यहाँ 1 बनाना है तो आप k को 0 रखोगे. ठीक है, तो अगर आप ऑड नंबर्स को 2k प्लस 1 फॉर्म में यूज कर रहे हो क्वेश्चन के अंदर, मेक श्योर कि आप k की जो इनिशियल वैल्यू उसको 0 सेट कर रहे हो. और अगर आप यहाँ 2k माइनस 1 फॉर्म में अगर अपने क्वेश्चन में यूज कर रहे हो ऑड नंबर्स का फॉर्मेट, सो मेक श्योर कि उसको आप k को 1 सेट करके चलो, देन ओनली यू विल स्टार्ट विद 1. ओके, वेयर k इज एन इंटीजर. ठीक है, तो ऑड नंबर्स भी अगेन वही डिबेट रहती है कि ऑड नंबर्स भी नेगेटिव में जा सकते हैं कई बार. ठीक है, बट एज लॉन्ग एज आपका क्वेश्चन आपको इट इज़ गिविंग यू अ चांस टू गेट इनटू नेगेटिव. अगर आपसे बात कर रहा है कि भाई इंटीजर बोल रहा है वो कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें जो वेरिएबल है वो एक इंटीजर होगा, तो आप उस केस में नेगेटिव इवन इंटीजर्स पे भी जा सकते हो. ठीक है, वो हम देखेंगे आगे कैसे होता है. फॉर नाउ आई होप इवन नंबर, ऑड नंबर, होल नंबर सब आपको क्लियर है. ठीक है, देयर आर सम रूल्स रिलेटेड टू even and odd numbers, and on the basis of this we also have a question coming up now. But first, even plus even, दो even numbers को अगर आप ऐड करोगे, कोई भी दो numbers ऐड कर लीजिए even, you will always get even. और यहाँ पे प्लस माइनस लिखा है यानी कि माइनस भी यूज कर सकते हैं, इवन माइनस इवन, दो इवन नंबर्स का डिफरेंस भी हमेशा इवन होता है. देन नेक्स्ट, इवन इंटू इवन इज इवन. यस, यू मल्टीप्लाई टू इवन नंबर्स, यू विल गेट एन इवन नंबर एज अ रिजल्ट, द प्रोडक्ट. इवन प्लस माइनस ऑड, अगर आप इवन नंबर में ऑड ऐड कर रहे हो या इवन नंबर से ऑड माइनस कर रहे हो, आपका जो रिजल्ट होगा हमेशा वो ऑड नंबर होगा. यू कैन टेक एनी टू नंबर्स, से 5 और 2, तो 5 प्लस 2 इज 7, 7 इज ऑड, 5 माइनस 2 3, 3 इज ऑल्सो ऑड. नेक्स्ट, ऑड प्लस माइनस ऑड, यानी कि अगर आप ऑड में ऑड ऐड करते हो या ऑड में से ऑड माइनस करते हो, स्टिल योर रिजल्ट विल बी एन इवन नंबर. टेक एन एग्जाम्पल एंड फाइंड आउट योर सेल्फ. इवन इंटू ऑड, द प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी इवन. तो कभी भी आप किसी भी नंबर से इवन नंबर को मल्टीप्लाई कर दे रहे हो तो हमेशा रिजल्ट आपका इवन ही होगा. तो इवन से आप ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करो, टेक एन एग्जाम्पल, फाइंड आउट योर सेल्फ, द प्रोडक्ट विल बी इवन. Odd into odd will always be odd. So you multiply two odd numbers, any two odd numbers, the product will always be odd. These are some rules that you need to take care of, and on the basis of this, we also have a question coming up now. Okay. The question says if AB into CD is equal to 629. So there are two numbers AB, CD, they are being multiplied and the product is 629. BA into DC is equal to 5183. Okay. Find the value of AB plus CD given that AB, BA, CD, DC are all 2-digit positive integers. AB and CD दो digits के numbers हैं, इनका product है 629. BA, DC are two numbers of 2 digits. They have a product 5183. Find the value of AB plus CD. Okay. So आपको AB plus CD निकालना है given that AB, BA, CD, DC are all 2-digit positive integers. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सेट होंगे.
आपको नंबर्स का क्लासिफिकेशन इसलिए पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ रहना है, सिर्फ 2 डिजिट के पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करनी है। ऑप्शन है हमारे पास 54, 55, 53, 51। अब इस क्वेश्चन में क्लूज पहले लिख लेते हैं। AB इंटू CD इज गिवन 629 एंड BA इंटू DC इट इज गिवन 5183। अब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बस बोला है कि ये ABCD जितने भी हमारे दिए हुए नंबर्स 2 डिजिट के, ये सारे के सारे 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। एक चीज़ जो हमें दिख रही है कि यहाँ AB है, यहाँ B है, यानी कि दिस इज द रिवर्स ऑफ AB, राइट, एंड CD यहाँ पर है, उसका रिवर्स DC है। 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट है ऑड, तो कैन वी से दैट दिस नंबर विल बी ऑड एंड दिस नंबर विल बी ऑड। देखो, अगर आप यहाँ पर जा करके 629 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने लग जाते हो ताकि आपको 2 नंबर्स ऐसे मिल जाएं 2 डिजिट के जिसका प्रोडक्ट 629 हो, इट विल टेक अ टाइम। अभी जो हम सिंपल एनालिसिस कर सकते हैं, दैट इज द प्रोडक्ट इज गिवन ऑड, सो डेफिनेटली द नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाइड विल बी ऑड, यू नो द रूल। हियर ऑल्सो द प्रोडक्ट इज ऑड, सो ऑब्वियसली द नंबर्स दैट आर बीइंग मल्टीप्लाइड दे विल बी ऑड। अगर आपका कोई नंबर AB ऑड है, इफ अ नंबर AB इज ऑड, तो उसको आप ऑड कैसे डिटरमाइन करते हो? यूनिट डिजिट, किसी भी नंबर की अगर यूनिट डिजिट ऑड है तो वो ऑड है, अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट इवन है तो वो नंबर इवन है। इफ AB इज ऑड, B विल बी ऑड। इफ AB इज ऑड, यूनिट डिजिट B विल डेफिनेटली बी ऑड, तो B भी ऑड हो जाएगा। अगर CD ऑड है तो D भी ऑड हो जाएगा, अगर BA ऑड है तो A भी ऑड हो जाएगा, एंड DC अगर ऑड है तो C भी ऑड हो जाएगा। बिकॉज एज आई सेड, आपको अगर ये डिटरमाइन करना है किसी भी बड़े नंबर को देख करके कि वो इवन है और उसकी यूनिट डिजिट आपको चेक करनी होती है। ओके, ऑब्वियसली हमें एक रिजल्ट मिल गया कि A भी ऑड है, B भी ऑड है, C भी ऑड है और D भी, ये सब के सब आपके ऑड नंबर्स हैं। हमसे पूछा था वैल्यू ऑफ AB प्लस CD, दैट मीन्स AB भी एक ऑड नंबर होगा, CD भी एक ऑड नंबर होगा, एंड 2 ऑड नंबर्स आर बीइंग एडेड। व्हेन यू ऐड 2 ऑड नंबर्स, the result produced will definitely be an even number. Do we have any even number in the options? Yes, it is 54. Now this is a question which was based upon elimination and basic rules of even and odd. यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा। फिर तो डेफिनेटली यार आप छोटा नंबर जो है जैसे 629, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो सीधा, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो देन यू विल बी गेटिंग 2 ऑड नंबर्स, उनका प्रोडक्ट 629 होगा। दैट वे यू कैन फाइंड आउट द आंसर। बट एलिमिनेशन अगर हम यूज करते हैं तो एक ही आंसर पॉसिबल है, दैट इज 54। अगर इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन होता नन ऑफ दीज, तो प्रोबेबली वो भी आंसर हो सकता था। उसके लिए हमें फिर एग्जैक्ट वैल्यू पे जाना पड़ता ABCD की, ठीक है। देन ओनली वी वुड हैव बीन एबल टू फाइंड आउट द आंसर। बट विथ सिंपल लॉजिक्स ऑफ ऑड एंड इवन, द प्रोडक्ट, द सम ऑफ ऑड एंड इवन, you can solve this problem, isn't it? I hope this question is clear. If you still have any doubt, let me know. We'll now go to the next question. Okay. So next we have prime numbers. Again, one more classification. Prime numbers are something that you are very familiar with. Again, prime numbers सबको पता है, ऐसे numbers जिनके 2 ही factor होते हैं, 1 and the number itself. Suppose 3. 3 को कौन कौन डिवाइड करता है? 3 के 2 ही factors है, 1 and 3. So 3 is a prime number. Okay. But we have some interesting facts as well around prime numbers, so listen patiently. A prime number is a whole number greater than 1 that has only 2 positive factors, 1 and itself. तो प्राइम नंबर्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ओके, सो प्राइम नंबर्स नेगेटिव नहीं होते हैं। अगर आपको प्रूव करना है तो सिंपली आप -5 का एग्जांपल ले लो। -5 जो है वो -5 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, -1 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा। -5 के 4 फैक्टर्स आ गए एक तरीके से। बट प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं? सिर्फ 2, 1 एंड इटसेल्फ। अगर 1 और इटसेल्फ जो उसकी वैल्यू है नंबर की, उसके अलावा कोई भी फैक्टर दिख रहा है किसी नंबर का, वो प्राइम नहीं है। ओके, सो फर्स्ट फ्यू प्राइम नंबर्स आर 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। यू नो दैट सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो 2 है। एंड इन फैक्ट देयर इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट 2, दैट इज 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 अकेला इकलौता इवन प्राइम नंबर है, उसके अलावा कोई इवन प्राइम नंबर नहीं होता। बाकी सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं। 3, 5, 7, मे बी 11, 13 ऑल आर ऑड नंबर्स। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक्सेप्ट 2 ऑल अदर प्राइम नंबर्स आर ऑड। ओके, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो अभी हम कॉम्पोजिट नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे आगे इन द स्लाइड्स फर्दर। बट 1 ना ही प्राइम होता है ना ही कॉम्पोजिट, बिकॉज एक्चुअली प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होने चाहिए, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ओके,
लेकिन 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, दैट इज़ 1. ओके, तो वो प्राइम नहीं है. कॉम्पोजिट भी नहीं, बिकॉज कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके कम से कम 3 फैक्टर्स होते हैं, एटलीस्ट 3 फैक्टर्स. सो 1 इज नॉट कॉम्पोजिट एज वेल. 3, 5, 7 is the only set of 3 consecutive odd primes. If you want to take 3 consecutive odd prime, देखो consecutive odd numbers बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है. वैसे तो आप बोलोगे कि आगे के जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो odd ही होते हैं, बट consecutive odds. So consecutive odd numbers are 3, 5, 7. This is the only set of 3 consecutive odd primes. Okay, इसके अलावा कोई भी 3 consecutive odds जो होते हैं वो प्राइम नहीं होते हैं. Okay. Smallest 3-digit prime number is 101. These things will come in handy, okay? And ऐसा होगा कई बार कि आप लोग चीज़ें भूलोगे. You'll think that okay, there's a lot to remember here, but as you keep using these facts and questions, you'll be able to remember them, okay? Smallest 4-digit prime number is 1009, okay? Every prime greater than 3, every prime number greater than 3 can be written in form of 6k plus 1 or 6k minus 1. 6k plus minus 1 है, इसका मतलब दो केसेस है, 6k plus 1 as well, 6k minus 1 as well. But the reverse is not true. इसका मतलब क्या है कि हर कोई प्राइम नंबर जो 3 से बड़ा होगा, जैसे कि 5, 7, then 11, 13, every prime number greater than 3 can be written in form of 6k plus 1 or 6k minus 1. But the reverse is not true. That means every number that is of form 6k plus 1 or 6k minus 1 is not necessarily a prime. For example, suppose I say 13 is a prime number, it is greater than 3, so it should be written in form of 6k plus 1 or 6k minus 1. How can you write 13? 6 into 2 plus 1. So yes, 13 is a prime number, it will definitely be written in form of 6k plus 1 or 6k minus 1, but the reverse, that every number of form 6k plus 1 or 6k minus 1 is not necessarily a prime. That means if I take the example of 25, 25 can also be written as 6 into 4 plus 1. So isn't this 6k plus 1? But is it a prime number? No, 25 is not a prime number. So that is why the reverse of this rule is not true. Please remember this, okay? And now this is very very important because it comes in handy in a lot of questions. कई बार आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक गिवन नंबर है ग्रेटर देन 40, अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 40 इज डिवाइडेड बाय समथिंग, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द रिमाइंडर. तो आपको जनरलाइज करना पड़ेगा जब प्राइम नंबर्स को, तो आप जनरलाइज ऐसे कर सकते हो कि अच्छा अगर प्राइम नंबर इतने से बड़ा है तो हम उसको 6k plus 1 6k minus 1 लिख सकते हैं, देन यू कैन डू योर फर्दर ऑपरेशन. ओके, p square, this is p square minus 1 is always divisible by 24 when p is greater than 5. तो अगर p जहाँ पे आपका प्राइम नंबर है, ओके, ये प्राइम नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, p is a प्राइम नंबर, प्राइम नंबर किसी भी प्राइम का स्क्वायर -1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 24 व्हेन p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5. तो अगर आपका प्राइम नंबर 5 या उससे बड़ा है तो उस प्राइम नंबर का स्क्वायर -1 अगर आप करोगे तो वो हमेशा डिविजिबल होगा 24. सो यू कैन टेक एन एग्जांपल, से 7 square minus 1, 7 square minus 1 is 48. Is 48 divisible by 24? Yes. Take the example of 13, 13 square minus 1 is 168. Is 168 divisible by 24? Yes. So p square minus 1, that means prime square minus 1 if prime is greater than equal to 5 is always divisible by 24. Digital sum of a prime number is never 3, 6 or 9. What is digital sum? Let's talk about digital sum. अगर आपको किसी नंबर का digital sum निकालना है, so keep adding the digits of the given number till you achieve a single digit number. जैसे कि मैं अगर बोलता हूँ कि 1865 का digital sum निकालना है, तो first of all you add all the digits, 189, 96, 15, 15, 5, 20. So the sum when you add all the digits is 20. You will again add the resultant number 2 plus 0. You add 2 and 0 together, you will get 2. So 2 is the digital sum of this number. Okay. So if there is a number जिसका डिजिटल सम 3 आ गया या 6 आ गया या फिर 9 आ गया, तो आप उसको नॉन प्राइम डिक्लेयर कर सकते हो. ओके, बिकॉज कभी भी किसी भी प्राइम नंबर का डिजिटल सम 3 या 6 या 9 नहीं हो सकता. ओके, सो रिमेंबर दिस. ओके, सो अगर आपको कोई बड़ा नंबर दे दिया, सपोज आपको एक नंबर दे दिया है 1706, आपको देखना है कि ये, या फिर चलो 1706 तो एक इवन नंबर है. इवन नंबर्स जो होते हैं 2 से बड़े वो कभी प्राइम नहीं होते हैं, पहली चीज़. तो एक ऑड नंबर दे दिया बड़ा सा आपको कि 189373, इसको आपको देखना है कि ये प्राइम होगा या नहीं होगा. तो देयर आर मल्टीपल वेज. व्हाट आर दोज वेज? सबसे पहला आप ये देखोगे कि इसका डिजिटल सम 3 या 6 या 9 तो नहीं आ रहा. अगर आ रहा है तो सीधा डिक्लेयर कर दो कि नॉन प्राइम है. उसके अलावा आप क्या यूज़ कर सकते हो
6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखा जा रहा है नहीं लिखा जा रहा है, बट दैट इज नॉट गारंटीड। मैंने क्या बोला था कि एक नंबर अगर 6k प्लस 1 या माइनस 1 फॉर्म में लिखा जा रहा है तो जरूरी नहीं है कि ये प्राइम होगा, बट एवरी प्राइम विल बी रिटर्न इन फॉर्म ऑफ 6k प्लस 1 और 6k माइनस 1. So there is another technique to check whether a number is prime or not. That is the square root method. Okay, I'll tell you how it's done. But there is another thing that you should remember, which is number of primes in a certain range. तो अगर आप 1 से 30 तक काउंट करते हो, how many prime numbers do you have? You have 10 primes. You can count. Okay, 1 to 50 there are 15 primes. Okay, so 1 to 50 if you check 2, 3, 5, 7 so on, you will get a total of 15 primes. 1 to 100 there are 25 primes. 1 to 200 there are 46 primes, and then maybe further you can check 1 to 1000 कितने primes होते हैं. कई बार ये डेटा आपके लिए यूजफुल हो जाएगा. ठीक है, कई क्वेश्चन में इसका एप्लीकेशन होता है. सो रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन गिवन टू अस, दैट इज if p is a prime number greater than 43, then what is the remainder when p square is divided by 24? There are two ways to do this question. आपका प्राइम नंबर है, ठीक है, p आपका एक प्राइम नंबर है, तो if a prime number is there, all prime numbers greater than 3 can be written in form of 6k plus 1 or 6k minus 1. 6k plus 1 और 6k minus 1. So I'm writing plus minus 1 together. Okay. इसका स्क्वायर करना है आपको. Obviously this will be your p. If you square it, so p square becomes 6k plus minus 1 का स्क्वायर, राइट. p स्क्वायर हैज़ टू बी डिवाइडेड बाई 24. अब देखो इसको करने के 2-3 तरीके हैं. क्या तरीका है 2-3 इसका करने का? दैट इज कुछ बच्चे इसको हिट एंड ट्रायल से करते हैं. 43 से बड़ा कोई भी प्राइम ले लो, जैसे कि आपका 47 हो गया, मे बी 53 हो गया, एंड यू विल फाइंड दैट ठीक है, हाँ मतलब 24 से डिवाइड करने पे आपको रिमाइंडर पता लग जाएगा इफ़ यू डू हिट एंड ट्रायल एंड टेक एनी प्राइम नंबर विच इज ग्रेटर देन 43. बट कैन यू चेक दैट with all the prime numbers? There are infinite prime numbers, right? There are so many prime numbers greater than 43. So can you keep checking all of them? No. So you are little unsure कि maybe आगे कोई ऐसा प्राइम नंबर आ जाए जो जिसको स्क्वायर माइनस 1 करके, मतलब जिसका स्क्वायर करके वो 24 से डिवाइड होकर अलग रिमाइंडर दे दे मे बी, है ना. सो टू be very very sure about things, you should always take the generalized format, and we have already a generalized form of prime numbers, right? That is all prime numbers greater than 3 can be written in form of 6k plus 1 or 6k minus 1, right? So if you square it, you get 36k square. Obviously a plus b का स्क्वायर a minus b का स्क्वायर आपको आता ही है, तो ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस मैं b स्क्वायर कर लेता हूँ. आपका b क्या क्या हो सकता है? तो प्लस 1 का स्क्वायर होगा या माइनस 1 का स्क्वायर. प्लस 1 का स्क्वायर भी 1, माइनस 1 का स्क्वायर भी 1, सो प्लस 1. देन माइनस और प्लस 2ab. सो 2ab अगर आप करोगे तो 2 इंटू a इज 6k, b इज प्लस माइनस 1. सो दो केसेस बनेंगे. क्या बनेंगे? प्लस माइनस 2ab करोगे तो 2 इंटू 6k इंटू 1, दैट इज 12k. दिस इज वॉट यू विल गेट वेन यू स्क्वायर एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 43. दिस इज द जनरलाइज फॉर्म. आपको देखना है कि इस पर्टिकुलर नंबर को 24 से डिवाइड करके क्या मेरा रिमाइंडर आएगा, राइट? रिमाइंडर. नाउ सी, आप 24 से इसको डिवाइड करके रिमाइंडर आपको निकालना है. रिमेंबर कि आप रिमाइंडर निकाल रहे हो. डू यू नो अबाउट दिस k? ये k तो पॉजिटिव, आई मीन ये k तो ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है. बिकॉज सपोज अगर मैं एक प्राइम नंबर लेता हूँ 13, तो 13 में आपका क्या आएगा? 6 इंटू 2 प्लस 1. तो आपका k इस केस में क्या आ रहा है? इवन. बट इफ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ से 19, दैट इज 6 इंटू 3 प्लस 1. तो व्हाट डू यू सी हियर? दिस 3 इज ऑड. सो यू नो दैट जब हम प्राइम नंबर्स को जनरलाइज कर रहे हैं 6k प्लस 1 माइनस 1 फॉर्म में, तो जो k हो सकता है ये इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है. तो यहाँ भी हमें k के लिए दोनों केसेस देने पड़ेंगे. तो आप दो केसेस क्या लोगे? आप दो केसेस ये ले सकते हो कि एक केस में आप क्या कर लीजिए, k को रख लीजिए 2x, बिकॉज इस केस में हम उसे इवन बोलेंगे, k को इवन. तो k अगर इवन होगा तो ये चलेगा. अगर k आपका ऑड होगा तो आप k की जगह क्या रखोगे? 2x प्लस 1, राइट? नाउ यू सिंपली पुट k इक्वल टू 2x हियर फर्स्ट. अगर आप इवन वाला केस सॉल्व करोगे सो 36 इंटू k का स्क्वायर, दैट मीन्स 2x स्क्वायर. 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस 1 एंड देन प्लस माइनस 12 इंटू 2x विल बी 24x, राइट? If you further solve this, you get 144x square plus minus 24x plus 1. And if you divide this by 24, what is the remainder? If 24 divides 144x square, तो 144 जो है वो 24 का मल्टीपल है. This will give remainder 0. Yes or no? 24 divides 144x square, remainder will be 0.
बिकॉज 144 खुद ही 24 का मल्टीपल है। आप x की कोई भी वैल्यू रख लो, हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा। 24 अगर 24x को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 देगा, बिकॉज 24x चाहे वो पॉजिटिव साइन के साथ हो माइनस साइन के साथ हो, हमेशा आपको रिमाइंडर 0 देगा, बिकॉज 24x इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 24। बचा आपका 1, और 1 डिवाइडेड बाई 24 रिमाइंडर कितना होता है 1। तो एक रिमाइंडर इस केस में आ गया मेरा 1। कब? जब इवन होगा। अगर आप k को ऑड रखते हो तो 36 k की जगह आप रखोगे 2x प्लस 1 का स्क्वायर, ये सुनो, देन योर प्लस 1, देन प्लस माइनस 12 टाइम्स 2x प्लस 1। इसको सॉल्व करना है पहले आपको। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा देखो, 36 इंटू 2x का स्क्वायर आएगा 4x स्क्वायर, तो 36 इंटू 4x स्क्वायर इज 144x स्क्वायर, 144x स्क्वायर। देन हियर 2x, जब आप 2x प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 4x आएगा, 4x इंटू 36 कितना आएगा 144x, 144x आपका यहाँ से आ गया, तो 144x। देन आपका ये प्लस 1 है तो प्लस 1, देन प्लस माइनस 12 इंटू 2x दैट इज प्लस माइनस 24x, एंड लास्टली प्लस माइनस 12 इंटू 1 इज प्लस माइनस 12. This has to be divided by 24. In the very first step you can do a lot of things. How? See, I hope यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि हमने क्या किया। 36k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 1 हमने यूज़ किया। अब 24 जब 144x स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 144 इज अ मल्टीपल ऑफ 24, ये रिमाइंडर आपको 0 देगा। वैसे ही 24 144x को डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 देगा। देन 24 आपका 24x जो है इसको डिवाइड करेगा और रिमाइंडर 0 देगा। व्हाट आर यू लेफ्ट विथ? यू आर लेफ्ट विथ जस्ट 1 प्लस माइनस 12, राइट? Okay, there is one more thing that we have missed over here, that is 36 into 2x plus 1 का स्क्वायर होगा तो एक 1 भी आएगा एक्स्ट्रा यहाँ पे, वो 36 उससे 36 into 1 of this one inside the bracket है ना। जब ये स्क्वायर होगा तो 36 into 1 कितना होगा 36, तो एक प्लस का 36 और आएगा एक्स्ट्रा हमारे पास, वो हम लिखना भूल गए तो उसको हम प्लस 36 को यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। देन प्लस 36 आएगा ऑब्वियसली, तो प्लस माइनस 12 प्लस 36 और ये 1 जो है इसको भी लिख लेते हैं। दिस हैज़ टू बी डिवाइडेड बाई 24। अब आपके पास दो केसेस हैं, क्या है? 36 प्लस 1 तो हो जाएगा 37, लेकिन 12 के लिए आपके पास दो केसेस हैं, एक बार प्लस 12 लोगे, एक बार माइनस 12। सो 37 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 24 का रिमाइंडर निकालो, और 37 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 24। सो 37 प्लस 12 कितना होता है 49, 49 डिवाइडेड बाई 24 रिमाइंडर इज 1। अगर आप 37 माइनस 12 करते हो 25, 25 डिवाइडेड बाई 24 रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर इज 1 इन ऑल द केसेस। कुछ भी आप रख लो इस k की जगह पे, ऑड इवन, हमेशा आपको क्या दिख रहा है कि अगर कोई प्राइम है और वो 43 से बड़ा है, उसका स्क्वायर करोगे तो 24 से डिवाइड होने पे हमेशा आपको रिमाइंडर 1 देगा। तो मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड बताया, बट मैंने बताया कि उसमें आप कितना हिट एंड ट्रायल करोगे, बहुत सारे नंबर्स हैं। तो आपका इस मेथड से क्या हो रहा है, डायरेक्टली यू आर गेटिंग 1 इन ऑल द केसेस, आंसर टू द क्वेश्चन विल बी 1। सो दिस इज द लॉन्ग मेथड एंड दैट हिट एंड ट्रायल मेथड मे बी द शॉर्ट मेथड। ओके, now there is another set of questions that we have. Okay, first let's try to solve this one. n is a prime number greater than 120. अगर आपका प्राइम नंबर है, अब तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि कोई भी प्राइम नंबर greater than 3 can be written as 6k plus 1 or 6k minus 1. So obviously if there is a prime number greater than 120, it can be written as 6k plus 1 or 6k minus 1. What is the remainder when n square is divided by 12? So obviously you will be taking what, 6k plus minus 1 का square, and you have to divide that by 12, okay, because you have to take the general form, right? So 6k square will be 36k square and plus minus 12k and then plus 1, and this entire number has to be divided by 12. So you are finding out कि कोई अगर आपका प्राइम नंबर है ग्रेटर देन 120, उसके स्क्वायर को अगर आप डिवाइड करोगे किससे, 12 से, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा? सो 36k स्क्वायर इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 12, ऑब्वियसली 12 से आप 36 को डिवाइड कर सकते हो, प्लस माइनस 12k, 12k यानी कि आपका मल्टीपल ऑफ 12 है, आप इसको डिवाइड करोगे 12 से, रिमाइंडर 0, फाइनली आपका आएगा 1 डिवाइडेड बाई 12। अगर आप 1 को 12 से डिवाइड करते हो आपका रिमाइंडर विल बी 1 ओनली। ओके, आई होप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, येस और नो? देन वी हैव
these two questions. Okay, which of the following is a prime number? Prime number check करना है, and then the remainder obtained when a prime number greater than 6 is divided by 6. ये भी बहुत आसान है. Prime number greater than 6, you can generalize. हर prime number greater than 3 can be written as 6k plus 1 और 6k minus 1. आपको इसको डिवाइड करना है किससे? 6 से. If you divide 6k by 6, remainder will be 0, and you divide 1 by 6, remainder will be 1 in this case. 6k minus 1 divided by 6, so 6 से 6k डिवाइड होकर 0 देगा, minus 1 divided by 6. अब minus 1 divided by 6 रिमाइंडर होता है 5. आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि minus 1 को 6 से डिवाइड कैसे कर सकते हो, रिमाइंडर 5 कैसे आ जाएगा. तो ये चीज़ मैं आगे आपको रिमाइंडर से बताऊंगा व्हेन वी डू नेगेटिव रिमाइंडर्स. अभी अगर मैं नेगेटिव रिमाइंडर्स बताऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा. You can keep this for later, but then we have two answers possible, 1 or 5. Option B gone. I hope this is clear. Fine. Now let's talk about this particular question. Which of the following is a prime number? You should know how to check whether a number is prime or not, right? So multiple तरीके हैं. पहले तो डिजिटल सम 369 नहीं होना चाहिए. ओके, आप अगर इसको डिजिटल मेथड से करोगे, सपोज मैं इसको डिजिटल मेथड से करता हूँ. ओके, आई एम टेकिंग द फर्स्ट नंबर पहले 889. वी हैव टू चेक ऑल. I'll tell you how to check 889 and then rest of the things you can do. Okay, 889 अगर आप इसका सम करते हो, 8 plus 8 16, 16 plus 9 is 25. 25 का फर्दर डिजिट्स का सम करोगे 7. अगर 3, 6 या 9 डिजिटल सम आ रहा है तब तो वो नंबर बिल्कुल प्राइम नहीं है, बट अगर 3, 6, 9 डिजिटल सम नहीं आ रहा है तो वो नंबर प्राइम हो भी सकता है. तो इसीलिए 889 को हम इस मेथड से क्लियरली डिक्लेयर नहीं कर सकते कि ये नंबर प्राइम होगा या नहीं होगा. लेकिन 889 का दूसरा तरीका है कि अगर आपको 889 दिया हुआ है, ओके, सपोज 889 आपको दिया है, तो टू चेक वेदर इट्स अ प्राइम और नॉट, द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू डू इज टेक अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट ऑफ 889. 889 किसके आसपास दिख रहा है आपको? 900 के आसपास. तो 900 किसका स्क्वायर होता है? 30 का. इसका मतलब डेफिनेटली 889 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 30 से थोड़ा नीचे होगा. यस और नो? आप मान लीजिए कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 30 होगा इसका स्क्वायर रूट. तो जो गिवन नंबर है, पहला स्टेप उसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है. निकाल लिया आपने. नाउ वॉट एवर द स्क्वायर रूट इज, उस स्क्वायर रूट से नीचे जो प्राइम नंबर्स लाई करते हैं उनको नोट डाउन कर लो. तो 30 के नीचे कौन कौन से प्राइम नंबर्स लाई करते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, राइट, 23 एंड देन 29, राइट. 30 के नीचे हाउ मेनी प्राइम नंबर्स डू वी हैव? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, देन 23, देन उसके बाद सीधा 29. आपको ये चेक करना है कि ये जो मेरा गिवन नंबर है 889, हम 889 को चेक कर रहे थे, राइट. क्या 889 किसी इनमें से किसी नंबर से भी अगर डिवाइड हो गया तो इसका मतलब वो प्राइम नहीं है. 2 से डिवाइड होगा 889, कभी नहीं होगा. 3 से होगा, 3 से इसका डिजिटल सम, आप इसका सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होना चाहिए. इफ़ यू रिमेंबर द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, क्या करना होता है? उसका डिजिट्स का सम निकालना होता है. अगर उसका डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स द नंबर इज डिविजिबल बाय 3. 5 से तो बिल्कुल नहीं होगा, देखो, बिकॉज 5 से किसी नंबर को डिवाइड होने के लिए उसका यूनिट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए. 889 का यूनिट डिजिट 0 या 5 नहीं है. 3 से होने के लिए इसका सम ऑफ डिजिट्स आ रहा है 25. क्या 25 3 से डिवाइड होता? नहीं, तो ये भी गया. 7 से चेक करो, क्या ये 7 से डिवाइड होगा? 7 1 जा 7, या फिर आप सीधा कर लो, 7 12 जा 84, 49 बचेगा. येस, ये 7 से डिवाइड हो रहा है. कैसे? 889 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 7 1 जा 7, देन 7 2 जा 14 एंड 7 7 जा 49. यस और नो? तो अगर कोई नंबर अपने और 1 के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो प्राइम नहीं है. तो क्या 889 प्राइम है? बिल्कुल नहीं है. सो आई टोल्ड यू द मेथड. या तो आप डिजिटल सम पहले ही चेक कर लो फटाफट, क्योंकि डिजिटल सम निकालना बहुत आसान होता है. अगर किसी भी नंबर का डिजिटल सम 3 या 6 या 9 हो गया तो डेफिनेटली नॉट प्राइम है. उसके अलावा अगर कुछ डिजिटल सम आ रहा है तो प्राइम है, बट उसको चेक करने के लिए आपको स्क्वायर रूट मेथड यूज़ करनी पड़ेगी. नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन 997 को अगर आप देखते हो तो 997 इज क्लोज टू 1000. ओके, तो 997 का पहले आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा. ठीक है, 997 का स्क्वायर रूट कहाँ आएगा? समवेयर अराउंड मे बी 32 से कम आएगा, बिकॉज 32 का स्क्वायर कितना होता है? 1024, और 31 का कितना होता है? 961. तो 961 से थोड़ा बड़ा, यानी कि 31 पॉइंट समथिंग आएगा इसका स्क्वायर रूट. तो 31 पॉइंट समथिंग से नीचे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, जैसे 31, 29, देन मे बी 23, इजंट इट, इन सब से आप क्या करोगे? 997 को डिवाइड करके देखोगे. अगर वो डिवाइड हो जा रहा है तो वो प्राइम नंबर है, अदरवाइज नहीं है. लेकिन हमने थोड़ी देर पहले एक चीज़ पढ़ी थी, दैट इज अबाउट प्राइम नंबर्स.
लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर इज 997, तो हमें सीधा दिख रहा है। तो कई बार आपको डायरेक्ट ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं, तो भाई ये तो प्राइम है ही है 997। वैसे ही आप 899 को चेक कर सकते हो, 1147 को कर सकते हो, दैट्स इट। आई होप प्राइम के अराउंड आपको काफ़ी चीज़ें आ गई हैं। One more question, how many 9-digit prime numbers can be formed using digits 1 to 9 only once? आपको 9-digit प्राइम नंबर बनाना है और 1 to 9 डिजिट्स यूज़ करनी है ओनली वंस। सो आप क्या प्राइम नंबर बनाओगे? 1 से 9 को अगर एक ही बार यूज़ कर सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो, बट यू हैव टू यूज़ ऑल 9 डिजिट्स ओनली वंस। सो सपोज आई राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, this is a number, yes or no? Now tell me, if I just change the order of these digits, say मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 5 7 9 8 6 4 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, okay. Either this can be a number formed using these digits once, either this can be a number using these digits only once, or some other variation. There will be so many variations, right? आप अलग अलग नंबर क्रिएट कर सकते हो यूजिंग डिजिट्स 1 to 9 ओनली वंस, एंड यू हैव टू फॉर्म अ 9 डिजिट नंबर। तो आपको सारे डिजिट्स एक बार यूज़ करने पड़ेंगे। अब आपको चेक करना है कि भाई ये प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा। पहले ये देखते हैं कि ये नंबर ही प्राइम नंबर होंगे या नहीं होंगे। अब देखो प्राइम नंबर चेक करने के कौन से तरीके हैं। या तो आप स्क्वायर रूट निकाल लो, क्या इसका स्क्वायर रूट निकालना आसान काम होगा? नहीं होगा। अगर निकाल भी लिया इसका स्क्वायर रूट, तो उसके नीचे के सारे प्राइम ढूंढो, फिर इसको डिवाइड करो, लॉन्ग मेथड। सेकंड, 6k + 1 और -1, क्या 6k + -1 करना है इसको बहुत आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है। तीसरा मेथड आता है एक तरीके से डिजिटल सम वाला मेथड, जो मैंने बोला। पहले तो डिजिटल सम देख लो, या फिर एक दूसरा तरीका, ऑब्वियसली अगर आप 1 से लेकर 9 तक की डिजिट्स का सम करते हो, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक के डिजिट्स का सम, मे बी 1 9 is 10, 2 8 is 10, 3 7 is 10, 4 6 10 and then 5, so 40 + 5 45 will be the sum of digits of this number। अगर आप 45 के डिजिट्स का सम करते हो, 4 + 5 9, अगर किसी नंबर का डिजिटल सम 9 हो गया, वो प्राइम है ही नहीं। And one more thing, sum of digits is 45. If the sum of digits of a number is divisible by 3, that number is divisible by 3, and the same division rule is for 9 as well. That means ये जो नंबर है, ये 9 से भी डिवाइड होगा, ये 3 से भी डिवाइड होगा, चाहे आप इसका कोई भी ऑर्डर लिख दो। If you write these digits in any order, they will always be divisible by 3 or 9. If a number is divisible by 3 or 9, it's not prime. So इसका आंसर आएगा 0. You can form 0 such prime numbers, because once you write the digits, find out the sum of digits, it is divisible by 3 or 9. I hope this is clear. This is a very good question. Okay, so I hope the basics of numbers are clear to you. The classification of numbers is clear. Then the definition is clear. Examples are clear. The questions are clear. Here we have built a very solid foundation of types of numbers, but there are few more types left. We need to investigate a bit more in the types of numbers. Like we have irrational numbers to be seen. We have rational numbers to be seen further. Then we have co-prime numbers, composite numbers, that we'll talk about in the next class. So I hope the things taught in this particular video are clear to you. Subscribe to the channel, keep coming back to learn, and these will always be helpful for you. If you want something else, then you can comment. Suggestions are always welcome. Thank you so much. I'll see you again.